Hello kids, welcome back to our English class. So today we are going to learn a new lesson called The Fox and the Elephant. So the story is about the fox and the elephant. This is lesson number 14. So before learning this lesson, we will learn some new words here. Arrogant means very proud, nestling means very young birds, uproar means violent disturbance, and then havoc means destruction. Uproar means violent disturbance, havoc means destruction, rogue means harsh or violent, ruthless means having no pity, cruel, then trampled means crushed under the feet. Representative means leader appointed by a group. Swamp means a piece of wet spongy ground. In Hindi we call it daldal. Get rid of, remove. Execute means carry out. Supreme means highest in rank. Coronation ceremony means crowning ceremony. Demon means devil. Cremation means burning to ashes. Antim sanskar karna. Then community means group of animals living in the same place. So now let's start with the reading first. I'll read. You need to do what? Repeat after me. So shall we start? Once upon a time there lived a huge elephant in a dense jungle. He was cruel and arrogant by nature. He roamed freely in the jungle, pulling down the small trees and branches of big trees. So once upon a time, एक टाइम ऐसा था जब एक बहुत ही घने जंगल में, डेंस जंगल में मीन्स घने जंगल में एक एलिफेंट रहता था. ही वॉज वेरी क्रूअल एंड एरोगेंट बाई नेचर. वो बहुत ही क्रूरी था और बहुत ही एरोगेंट था, बहुत ही उसको घमंड था. He roamed freely in the jungle, pulling down small trees and branches of big tree. उसे जंगल में घूमने की आदत थी और पेड़ पौधों को तोड़ने की भी बहुत आदत थी, क्योंकि वो बहुत ही क्रूअल था और बहुत ही घमंडी एलिफेंट था. Animals who lived in the trees were afraid of the elephant. When he pulled down the trees and tore off the branches, many nests and eggs and nestlings came down crashing on the ground and got destroyed. His movement in the jungle created an uproar and havoc all around. Animals who lived in the trees were afraid of the animal. जो इन पेड़ पौधों में जीव जंतु रहते थे, प्राणी रहते थे, वो इस एनिमल से, एलिफेंट से बहुत डरने लगे. जैसे कि बंदर या फिर बर्ड्स जो इन ट्रीज पे रहा करते थे, उन्हें तो बहुत डर आने लगा, क्योंकि ये एलिफेंट क्या करता था, उन ट्रीज को तोड़ देता था. When he pulled down the trees and tore off the branches, many nests and eggs and nestlings came down crashing on the ground and got destroyed. His movement in the jungle created an uproar and havoc all around. जैसे ही वो कोई पेड़ को तोड़ता था, पेड़ या पौधों को तोड़ता था, तो उसके साथ साथ बर्ड्स, उसके नेस्टलिंग, उसके बच्चे, उसके अंडे भी टूट जाते थे. तो इस चीज़ से जंगल में उपद्रव मच गया. It created an uproar, उपद्रव, and havoc all around. So इस एलिफेंट ने क्या करना स्टार्ट कर दिया? हर जगह विनाश करना स्टार्ट कर दिया. So even the big cats like lions and tigers kept themselves at safe distance from this rogue. In this ruthless march in the jungle, many holes of the foxes were trampled. The foxes and other smaller animals like rabbits and mice were annoyed with the elephant's behavior. Many of them wanted to get rid of the elephant, but the task was very difficult because of his huge size. Even the big cats like lions and tigers kept themselves at a safe distance from this rogue. जो ये उपद्रव मचाने वाला एलिफेंट था, उससे जंगल में ज़्यादातर खतरनाक प्राणी कौन से रहते हैं? लायंस एंड टाइगर. बट यहाँ पे लायन और टाइगर भी इस एनिमल से, इस एलिफेंट से डरने लगे. जो ये उपद्रव मचा रहा था एलिफेंट, उससे, ये क्रूर वायलेंट एनिमल से वो डरने लगे. सो इन दिस रूथलेस मार्च इन जंगल, मैनी होल्स ऑफ फॉक्सेस वर ट्रैम्पल्ड. ये जो उपद्रव एलिफेंट मचा रहा था, जो रूथलेस था, विदाउट एनी मर्सी, बिना किसी को बख्शे, बिना किसी का सोचे, जो ये
जंगल में मार्च कर रहा था, घूम रहा था, उससे फॉक्सेस के होल्स पे कुचले जा रहे थे. The other smaller animals like rabbit, mice were annoyed with elephant's behavior. अदर एनिमल्स लाइक रैबिट्स और माइस भी बहुत ही परेशान हो गए थे. मैनी ऑफ देम वांटेड टू गेट रिड ऑफ द एलिफेंट. इन सब जानवरों को इस एलिफेंट से छुटकारा पाना था. बट द टास्क वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज साइज. बट कोई उससे मुकाबला नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ हिज ह्यूज साइज. उसका साइज कैसा था? बहुत ही बड़ा था. यू कैन सी हियर द साइज ऑफ द एलिफेंट. एलिफेंट कैसे रहते हैं? बहुत ही बड़े. Then the meeting of all foxes were called. In the meeting, this rather impossible task was assigned to a very cunning but clever fox, because before executing this plan, the fox studied the elephant's behavior for many days. So इन सब के बाद fox की एक meeting बुलाई गई. So fox का nature कैसा रहता है? Fox are cunning and clever by nature. Fox are usually cunning and clever by the nature. ऐसा माना जाता है कि फॉक्स जो रहते हैं बहुत ही कनिंग रहते हैं, लेकिन बहुत ही क्लेवर भी रहते हैं, बहुत ही होशियार रहते हैं. तो एक फॉक्स को ये काम असाइन किया गया, ये काम दिया गया कि एलिफेंट को क्या करना है? एलिफेंट से छुटकारा पाना है. लेकिन बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस इस प्लान को वास्तविकता में लाने से पहले फॉक्स ने क्या किया? एलिफेंट का बिहेवियर स्टडी किया कुछ दिनों तक. One day the fox went to the elephant and said to him, "Your Highness, I need to talk to you urgently. It's matter of life and death for us." So एक दिन फॉक्स ने क्या किया? एलिफेंट के पास गया और उसे मक्खन लगाने लगा, उसे बटरिंग करने लगा. मक्खन में सच में मक्खन नहीं लगा रहा था, उससे प्यार से बात करने लगा और बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करने लगा और कहने लगा, Your Highness, I need to talk to you urgently. It's a matter of life and death for you. सरकार, मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंटली, बहुत ही शीघ्र में बात करना है, बिकॉज ये जिंदगी और मरने का सवाल है. So it is very urgent. We need to talk to you, he said. Then the elephant trumpeted his highest pitch and asked, "Who are you? Why do you want to talk to me?" The elephant trumpeted. Elephant ने क्या किया? अपने ज़ोर से पिच में आवाज़ लगाई एंड उसने पूछा, "Who are you? Why do you want to talk to me?" तुम कौन हो? मेरे साथ क्यों बात करना चाहते हो? Your Highness, said the fox, I am the representative of the entire animal community in this jungle. We have decided to appoint you as of this our supreme head, the king. Kindly accept our offer. So fox कहता है, सरकार, हमारा जो एनिमल्स का समूह है उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ. तो हम सबको लगता है कि आपको हमारे समूह का राजा घोषित कर देना चाहिए. प्लीज़ हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए. आपको हम क्या बनाना चाहते हैं? हमारे एनिमल के समूह का हेड बनना चाहते हैं, सुप्रीम हेड बनाना चाहते हैं और क्या? राजा बनाना चाहते हैं. द एलिफेंट लिफ्टेड हिज ट्रंक विथ great pride and asked for details. So elephant lifted what? His trunk with great pride and asked for details. फिर elephant ने पूछा, और बता, और क्या क्या जानकारी है. Then the fox further explained. Fox ने कहा, I have come to take you with me. मैं आपको ले जाने आया हूँ. The coronation ceremony will take place in the middle of the jungle where thousands of animals have already gathered and are chanting holy mantras. कोरोनेशन सेरेमनी जिसमें आपको राजा बनाया जाएगा वो जंगल के बीचों बीच है और बहुत सारे हजारों एनिमल्स आपकी राह देख रहे हैं और दे आर चैंटिंग होली मंत्रा. वो बहुत सारे मंत्र पढ़ रहे हैं आपके लिए. द एलिफेंट फेल्ट इलेटेड to hear this. The elephant felt excited to hear this. He felt very happy. He got thrilled. एलिफेंट तो बहुत खुश हो गया. ही हैड ऑलवेज चेरिश्ड अ ड्रीम टू बिकम द किंग ऑफ द जंगल. एलिफेंट को हमेशा से जंगल का राजा बनना ही था. ही थॉट दैट द कोरोनेशन सेरेमनी विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हिम. ही रेडीड हिमसेल्फ हरीडली टू अकम्पनी द फॉक्स डीप इनसाइड द जंगल. जैसे ही
एलिफेंट ने सुना कि उसकी कोरोनेशन सेरेमनी होगी और उसे राजा बनाया जाएगा। उसे तो बहुत खुशी हुई। फिर वो वहाँ से फॉक्स के साथ निकल गया। कहाँ जाने के लिए? कोरोनेशन सेरेमनी, राजा बनने के लिए। देन कम योर हाइनेस फॉलो मी सेड द फॉक्स। अभी फॉक्स तो क्या कर रहा है और थोड़ा एलिफेंट को मक्खन लगा रहा है और थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रहा है ताकि एलिफेंट उसके बातों में आ जाए। और कहता है, फॉक्स कहता है, कम योर हाइनेस फॉलो मी, आइए सरकार मुझे फॉलो कीजिए। द फॉक्स लेड द एलिफेंट टू सम इमेजिनरी स्पॉट ऑफ द coronation ceremony. On their way they had to walk through a swampy area by the side of a pond. The fox, being light-bodied, crossed the small swampy patch without any difficulty. The elephant too walked on it, but because of his heavy build, he got stuck into the swamp. So fox led the elephant to some imaginary spot of the coronation ceremony. So बच्चों, tell me, is this coronation ceremony real? No, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी थी जो फॉक्स ने अपने दिमाग में बनाई थी और एलिफेंट को सुनाई थी ताकि वो उसे फॉलो कर सके। तो एक इमेजिनरी स्पॉट पे एलिफेंट को फॉक्स लेके जाता है और एक पॉन्ड के पास क्या रहता है? स्वैम्पी एरिया। स्वैम्पी एरिया मीन्स दलदल, एक दलदल वाला एरिया रहता है जहाँ से वो एलिफेंट को लेके जाता है। द फॉक्स बीइंग लाइट बॉडीड, फॉक्स तो एलिफेंट से क्या था? हल्का था। तो फॉक्स क्या करता है? उस दलदल से आराम से निकल जाता है। द एलिफेंट टू वॉकड ऑन इट बट बिकॉज ऑफ हिज हेवी वेट ही गॉट स्टक इनटू द स्वैम्प। एलिफेंट का साइज और वेट तो बहुत ज़्यादा था, सो वो दलदल में क्या करता है? फंस जाता है। ही गॉट स्टक इनटू द स्वैम्प। तो एलिफेंट क्या हो जाता है? स्वैम्प में स्टक हो जाता है, स्वैम्प में, दलदल में फंस जाता है। द मोर ही ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प द मोर ही वेंट डीप इनटू इट। जब आप दलदल में जाते, अटकते हो या फिर फंस जाते हो, अगर आप बहुत सारे हाथ पैर मारते हो तो और अंदर चले जाते हो। सो सेम हैपेंड विद द एलिफेंट। द मोर दैट एलिफेंट ट्राइड टू कम आउट ऑफ द स्वैम्प द मोर ही वेंट डीप इनटू इट। वो जितना ही प्रयत्न करता था कि बाहर आ जाए, उतना ही वो दलदल के अंदर जा रहा था। सो ही बिकेम स्केर्ड एंड कॉल्ड आउट टू द फॉक्स। वो फॉक्स को बुलाने लगा। जैसे ही वो डर गया कि मैं दलदल में डूब जाऊंगा, वो फॉक्स को बुलाने लगा और कहने लगा, डियर फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, आई एम सिंकिंग इन द मड, वॉट विल हैपन टू माई कोरोनेशन नाउ, कॉल द अदर एनिमल्स टू हेल्प मी। तो फॉक्स को, जो पहले एलिफेंट बहुत ही क्रूएल था, एरोगेंट था, अभी फॉक्स को कहता है, डियर फ्रेंड, मेरे फ्रेंड प्लीज़ मुझे हेल्प करो, मैं इस दलदल में, इस मिट्टी में डूब जाऊंगा। सो मुझे, मेरा कोरोनेशन सेरेमनी का क्या होगा? सब एनिमल्स को बुलाओ और मुझे बचाओ। द फॉक्स वॉज स्टैंडिंग कामली एट द एज ऑफ द स्वैम्प। तो दलदल के किनारे फॉक्स क्या कर रहा था? आराम से रुका हुआ था। He said, who said? Fox said, I am not going to help you. I am not here to save you. You deserve this treatment. So what did the fox say? He said, I am not going to help you. I am not here to save you. You deserve this treatment. ना तो मैं तुम्हारे हेल्प करूँगा, ना तो मैं तुम्हें बचाऊँगा। तुम इस ट्रीटमेंट को क्या करते हो? डिजर्व करते हो। बिकॉज एलिफेंट वॉज destroying all the trees and shelters of all the birds, right? So he deserved that treatment according to the fox. Now you know how cruel you have been to other animals and birds. You pulled the branches of trees and uprooted small trees mercilessly without caring for the eggs and for the lives of the nestlings. So as I said, fox is also saying that, fox is telling the elephant that, you know how cruel you have been. तुम्हें पता है तुमने कितना बुरा बर्ताव किया है हर एनिमल्स और बर्ड्स के साथ इस जंगल में। तुमने ना ही सिर्फ ट्रीज के ब्रांचेस तोड़े, बल्कि छोटे छोटे बर्ड्स के बच्चों को भी मार डाला।
You trampled upon the burrows of the foxes, rabbits, snakes, and other animals. We saw our siblings being crushed under your heavy feet. You saw us crying and begging for mercy, but nothing bothered you, said the fox angrily. The fox said angrily, You trampled upon the burrows of foxes, rabbits, snakes, and other animals. तुमने foxes, rabbits, snakes के घरों को कुचल दिया. We saw our siblings being crushed under your feet, heavy feet. हमने हमारे भाइयों को, बहनों को, मीन्स हमारे सिबलिंग्स को तुम्हारे पैर के नीचे कुचले जाते हुए देखा है. You saw us crying and begging for mercy, but nothing bothered you. You saw us crying and begging. तुमने हमें अपने लिए, अपनी जान के लिए भीख मांगते हुए भी देखा है, लेकिन तुमने कोई दया नहीं दिखाई. सो फॉक्स ने क्या कहा, एंग्रीली ये सब उसे कहा ताकि उसे उसकी गलती का पछतावा हो. अदर एनिमल्स हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज केम आउट एंड शाउटेड एंग्रीली, डोंट स्पेयर द क्रूअल डेमन. सो बाकी जानवर जो ट्री के पीछे छुप गए थे वो भी बाहर आ गए और चिल्लाने लगे, डोंट स्पेयर द क्रूअल डेमन, इस राक्षस को मत छोड़ना. वी आर सॉरी टू टेल यू दैट दो योर कोरोनेशन कुडंट टेक प्लेस, योर cremation will definitely take place. We are sorry to tell you that though your coronation couldn't take place. हमें ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि तुम्हारा कोरोनेशन सेरेमनी तो नहीं हुआ, तुम्हें राजा बनाने की सेरेमनी तो नहीं हुई, लेकिन तुम्हारी क्रिमेशन सेरेमनी हम ज़रूर मनाएंगे, तुम्हारा अंतिम संस्कार हम इधर ही कर देंगे. सेड द फॉक्स एंड लेफ्ट द प्लेस अलॉन्ग विद द अदर एनिमल्स. द एलिफेंट स्ट्रगल्ड बट couldn't come out of the swamp. He drowned in the marsh and died. सो फॉक्स और एनिमल्स ने अपना गुस्सा निकाला और वहाँ से चले गए. और जो क्रूअल एरोगेंट एलिफेंट था उसने क्या किया, ही स्ट्रगल्ड इन द स्वैम्प बट couldn't come out of it. उसने दलदल में बहुत ही ट्राई किया कि बाहर आ जाए, बट वो बाहर नहीं आ सका, वो दलदल में डूब गया और मर गया. ओके, दिस वाज द स्टोरी अबाउट द फॉक्स, द क्लेवर फॉक्स एंड द क्रूअल एंड arrogant elephant. So I hope you have understood this story and also enjoyed it. So in next class we will solve the exercise for this lesson. So till then what you need to do, you need to read the lesson, you need to learn the new words. Okay, so see you in the next class. Till then, take care and study well.